बटरफ्लाई जब पंख हिलाती है तो पूरी दुनिया में उसका तहलका मच सकता है, एंड अदर पार्ट ऑफ द वर्ल्ड इट कैन क्रिएट स्टॉर्म्स। इतना सा पंख हिलाने से दुनिया के दूसरे पार्ट में तूफान आ सकता है। एंड आई स्टडीड मोर, तो मुझे पता चला कि इन मैनेजमेंट ऑल्सो दिस इज टॉट एज अ पैरेटो प्रिंसिपल। इट इज कॉल्ड 80-20 रूल। 20% थिंग्स इन आवर लाइफ गिव्स 80% ऑफ रिजल्ट्स। मुझे लगा कि दिस ट्रू, देन कैन आई फाइंड आउट व्हाट आर दिस 20% थिंग्स वी ऑल शुड बी डूइंग, सो हमारा 80% सक्सेस आ जाए। बहुत सारी चीजें हैं, सो हम 100 चीजें करते हैं, जिसमें 20 चीजें ऐसी होंगी जो बहुत ज्यादा आपको सक्सेस देंगी, और 80 चीजें आप करते हो। सो देन आई रियलाइज्ड व्हेन आई वाज लुकिंग बैक माय लाइफ, in a lot of my authors' life, that becoming an author is one of the butterfly things. There are a lot of things, but one of the butterfly that gives you a boost, and it gets rains in your life, rains of gratitude, rains of blessings, rains of money, rain of a lot of significance. बहुत सारी चीजें लेके आती है। So I thought, it is happening to my life. Is it happening to all the authors? And I spoke to them, and yeah, everyone feeling the same. So I thought, let's discuss and let everyone know how it works. So today I have Ankush Pare. Ankush is a young, handsome, dynamic person in front of me, and लड़की ढूंढ रहे हैं इनके लिए। आपकी नजर में कोई है तो बताइए। I'm just kidding. So I don't know, but I'll speak to Ankush separately on that. But let me introduce Ankush. Ankush Pare is a person who sometime back, not sometime back, a couple of years back, वो stammer करते थे. And he used to speak, he used to stammer, and I personally feel that stammering is not issue with language or with the way you speak. Majorly it gives you an issue on your confidence. आपका confidence ही टूट जाता है. And somehow Ankush found his own ways to come out with this stammering issue, and not only himself, I think more than 500 people he must have helped to come out with this kind of issue. And he is an MTech engineer. He's an engineer, MTech engineer, not a BTech engineer, MTech engineer. बहुत पढ़े लिखे हैं. He worked with MNC, जैसे हम सब लोग करते हैं, इंजीनियरिंग किया, MTech किया, काम किया, he did that, but he got his realization in his life कि I am not made to work in front of computer, और ये काम करने के लिए नहीं बना हूँ मैं जिंदगी में. I am here to help people. I have a beautiful gift given by God that I know how can you speak well. आप अच्छे से कैसे बात कर सकते हो? And I am speaking well mean बहुत सारे लोग हम generally अच्छे से बात करते हैं, but there are people who do not know how to speak well. So stammering is one of the issue, and I think it's more of a psychological issue than a physical issue. And Ankush helped a lot many people. He's a digital entrepreneur. So इनके clients जो हैं all over India, all over world हैं, who takes his services to speak better. Then he's a YouTuber. You go and follow him, YouTuber. He gets fantastic videos, YouTuber. तो आप जो बोलोगे ना कि he is following his passion, and while following his passion, he's living the life of his dreams. Money is at abundance in his life. Gratitude is at abundance because helping a lot of people, and this happens when you start following your heart. अपने दिल को follow करोगे तो ये सब चीजें होने लगती हैं. And I met him because of book writing journey. I have his book in my hand called Seven Easy Secrets of Effective Speaking. And you see Ankush here. So I present the successful author, the successful coach, a person who is here to change a lot of lives positively, Ankush Pare. So Ankush, do you want to add something? Do you want to share with people what you do today, how you help people, and how this journey started of becoming from employee? Just share about yourself, and we'll talk on the book short. Okay. So when I started doing job, so that time the concept was like a boss there. So जब आपके सामने बॉस होता है तो आपको पता है सब कुछ काम करना पड़ता है, and फिर भी बॉस आपका हैप्पी satisfied नहीं होता है. So at that time I feel like I'm doing everything, but still my boss is not happy. So why I should make my boss happy rather than I should be unhappy? So मुझे ऐसा लगा कि मैं खुद को क्यों ना थोड़ा सा मेरा जो पैशन है उसको फॉलो करूँ. तब मेरे दिमाग में आया कि जब मुझे बचपन में जो स्टैमरिंग का इशू था, अब जब मैंने इसको ओवरकम किया तो क्यों ना मैं उसी को लेकर किसी और को हेल्प करूं. एंड जब मैंने YouTube पर वैसे वीडियो अपलोड करना स्टार्ट किया तो जो उनको देख रहे थे उनके अंदर कुछ ना कुछ ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा था. लोग वहाँ पे कमेंट्स लाइक करते हैं, एंड वहां पर मुझे ऐसा लगा कि क्यों ना मैं इसको ही एक अच्छा लोगों को सिखाने का एक कंसेप्ट जो है मैं वो बनूं एज अ कोच, मैं उनको सिखाऊं एंड उनके लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन करूं.
सो मेरी जर्नी फ्रॉम एम्प्लॉय टू ऑथर और आई कैन से यूट्यूबर और एंटरप्रेन्योर जो भी है वो मैंने 2 साल में किया है, जो भी किया मैंने सब कुछ अभी। इसके पहले तो मैं एक ऐसा इंसान था जो कि गांव से आया है, एंड गांव में आपको पता है कि एजुकेशन सिस्टम या फिर इंटरनेट का कनेक्शन या फिर लाइट चली जाती है एंड सो मेनी थिंग्स आर देयर। मेरे जो फादर है फार्मर है, वो हार्ड वर्किंग फार्मर है एंड वो सुबह 4 बजे उठ जाते हैं, फिर 6 बजे फार्म में जाते हैं, शाम के 6 बजे घर वापस आते हैं। सो ये सब कुछ मैं उनको देख रहा था एंड जो उनका हार्डवर्क था घर के लिए भी एंड वो फाइनेंस के लिए भी, तो मैं उसको देखकर ही सीख रहा था कि यार अगर मैं खुद एक हार्डवर्किंग इंसान, एक्चुअली मैं अपने फादर से ही सीखा हूँ कि मैं काम को कंप्लीट कैसे करूँ फटाफट। सो एक्चुअली जो मैंने बुक लिखी ना, आपका जो कंसेप्ट है कि 30 दिन में बुक कंप्लीट करो एंड ऑथर बनो, सो एक्चुअली मैंने जो बुक आपको पता है कैलाजी मैंने 20 दिन में लिख डाली थी एंड मैं वेट कर रहा था उसको पब्लिश होने का। सो जो हार्डवर्किंग है या फिर जो भी मेरा डेडिकेशन है किसी भी चीज को करने का, मुझे ऐसा फ्रैंकली लगता है कि मेरे फैमिली मेंबर से मुझे ज्यादा मिला है एंड मोस्टली मुझे मेरे फादर से ही मिला है। एंड जो मेरा एक कंसेप्ट है सक्सेस का, मुझे ऐसा लगता है मैं शेयर करना चाहूंगा कि अगर आप किसी भी चीज की शुरुआत करते हैं तो हमेशा ध्यान में रखिए उसको एंड जरूर कीजिए। अगर आप में छोड़ देते हैं तो फिर आप यहाँ के भी नहीं रहते, वहां के नहीं रहते, आप बस उसको बस कुछ ना कुछ बस ऐसा लगता है कि आप कुछ कर रहे हैं। सो ये मेरा छोटा सा इंट्रोडक्शन मैंने सो मैं एक चीज ऐड करूंगा। आई रिमेम्बर अंकुश की बुक दिवाली पे रिलीज हुई थी और दिवाली पे अंकुश का गांव है अमरावती में, राइट? अमरावती में एंड अंकुश रहते पुणे में। तो दिवाली पे वो घर गए थे अपने मम्मी पापा के साथ और बुक के हमारे डिस्कशन चलते थे। तो मैंने एक दिन को फोन किया तो मैंने कहा क्या करें अंकुश जी? बोले मैं खेती कर रहा हूँ, पापा की हेल्प कर रहा हूँ, खेत में हूँ। एंड ही कम्स फ्रॉम दैट हम्बल बैकग्राउंड कि जमीन से जुड़े हुए इंसान है, मिट्टी के साथ खेल के बड़े हुए हैं और आज भी मिट्टी में रहते हैं क्योंकि when he goes to home he helps his father on farming. And one profound thing he says, hard working is his key to success. I'll tell you, he's smart worker too. He is one of the few authors जो सबसे पहले, जिनके साथ मैं अगर एग्जांपल दूं, इन्होंने ये जो पूरी बुक लिखी है एक भी वर्ड टाइप नहीं किया था इन्होंने। So without even typing he wrote entire book. That's called the presence of mind and smartness. And he used voice typing solutions, which we also share. Voice typing solution use karke he did everything. And you know, it's a mixture of a smart work and hard work, which takes you ahead very, very high and ahead in life. So anyone you जिसका वीडियो अटक रहा है ना, what you got to do, you to refresh the page. Sometime internet issue के कारण पेज रिफ्रेश करना पड़ेगा. So just refresh your page. And now, Ankush, why did you think of a book? So ठीक है, I understood कि आप एम्प्लॉय थे, आप अपने लिए कुछ करना चाहते थे, आपने यूट्यूब चैनल चालू किया. Then why this idea of book came in कि मुझे बुक लिखनी है? एक्चुअली ऐसा होता है कि जब मैं लोगों को सिखा रहा था एंड जब मैं उनके अंदर ट्रांसफॉर्मेशन लेकर आ रहा था, तो मुझे ऐसा कहीं पे लगा कि मैं एज अ एक्सपर्ट, मुझे पता है कि मैं इसमें लोगों की हेल्प कर सकता हूँ, बट हम लोग एक्सपर्ट उन्हीं को भी मानते हैं जिनकी बुक भी होती है। सो मुझे ऐसा लगा कि क्यों ना मेरी बुक हो जिसमें मैं अपने एक्सपीरियंस को शेयर करूं एंड लोग उसको पढ़कर भी अपने लाइफ में कुछ ना कुछ चेंजेस लाए। एंड एज अ ऑथर जब हम लोग किसी को देखते तो उनको लगता है कि यार ये इंसान एक्सपर्ट ही होता है उस फील्ड में। सो आई थॉट कि ये एक बहुत अच्छा एक रीजन है मेरे लिए कि मुझे बुक लिखनी चाहिए। एंड जब मैंने बुक को लिखा, सो टू बी ऑनेस्ट, बहुत सारे लोग उसको बाय कर रहे हैं एंड लोग उसको पढ़ रहे हैं एंड अच्छा रिप्लाई भी आ रहा है मुझे। सो अच्छा मुझे लगता है कि मैं उनके सामने वीडियो के थ्रू ना जाकर, अगर मैं टेक्स्ट के थ्रू भी उनके सामने जा रहा हूँ एंड लोग उससे भी कुछ ना कुछ सीख रहे, तो ये बहुत बड़ी बात है एज अ ऑथर। यस, एंड आई वुड लाइक टू शेयर नो वेरी ब्यूटीफुल स्टोरी। मेरी और अंकुश की मुलाकात कैसे हुई, ये बहुत ब्यूटीफुल स्टोरी है। मेरे बिजनेस पार्टनर है दीपक पर्वत। सो दीपक भी है, मेरे हमेशा पास में रहती है, क्योंकि दीपक पर्वत मेरे बिजनेस पार्टनर है। तो दीपक और मैं भी वी आल्सो गो एंड अटेंड लॉट ऑफ वेबिनार्स एंड सेमिनार्स, बिकॉज लर्निंग हम सब में ना, लर्निंग की सीखना है, ये डीप कोर डाउन है। सो दीपक एक वेबिनार में, एक सेमिनार में गए थे, आई थिंक इट वाज इन डेक्कन क्लब में एक सेमिनार था पुणे में, जहाँ पे दीपक heard there was a lady who was presenting, और वहां पे दीपक और अंकुश पास में बैठे थे, उनकी मुलाकात हुई। एंड ये जाने और दीपक ने बोला अंकुश को कि मैं, हमारा भी एक सेमिनार है
why don't you come and attend us? And then he attended our seminar, and we became friends, we became partners, we became authors. So बहुत सारी चीजें हुई उसके बाद में. So you don't know where will you find good people in life, but एक चीज अच्छी है, सीखने जाओगे तो अच्छे लोग पक्का मिलेंगे. राइट, सेम वाइब्स के लोग मिलते हैं. Yeah. So अंकुश, हमारे सेमिनार में आने के पहले आपका प्लान था बुक लिखने का, कि वहां आके सोचा, कि पहले से था? एक्चुअली जब मैं आपके सेमिनार में आया था उसके पहले ही मैंने आपका ऐड देख लिया था फेसबुक पे, एंड मैं श्योर था कि मुझे तो लिखना ही है, क्योंकि मेरे दिमाग में था वो. एंड जो फेसबुक पर आप जो भी सर्च करते हैं ना, ऑटोमेटिकली उसके रिगार्डिंग एड्स आते थे आपके सामने. सो मेरे सामने आ गई वो सुपर फास्ट ऑथर की. और कितने साल महीने से हमारे मिलने के पहले आप सोच रहे थे? ऐसा कुछ नंबर है दिमाग में? एक्चुअली मैं इसी साल, मैं 2019 में सोच रहा था, जब मैं शायद मार्च या अप्रैल में उसके बारे में सोच रहा था कि मुझे बुक लिखनी चाहिए, बट मुझे ऐसा कोई सॉल्यूशन नहीं मिल रहा था कि लिखना मतलब क्या करना है. अराउंड मार्च, एंड आपकी बुक रिलीज की हमने अक्टूबर में. मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, सितंबर, अक्टूबर, 6 महीने, 6 मंथ्स. तो 6 महीने के बाद अचानक से ऐसा क्या हुआ कि आपने डिसाइड किया बुक तो हो ही जाएगी, लिखनी है, दिवाली पे लॉन्च करनी है? एक्चुअली मेरे अंदर वो टैलेंट ही मान के चले वैसा है कि जब मैं किसी चीज के बारे में सोचता हूँ मैं उसको कंप्लीट करता ही हूँ. एंड जैसे मैंने इस बुक को कंप्लीट किया 20 दिन के अंदर, वैसे मैंने अभी दूसरी बुक को भी कंप्लीट किया 7 दिन के अंदर. 7 दिन के अंदर. यस, सेकंड बुक भी आपने लिखी है. सो अभी मुझे एक बताइए कि जब आपने अपने फ्रेंड्स, फैमिली या बहुत सारे लोग जिनको आप जानते हैं, आपने उनको बताया कि आप बुक लिख रहे हैं, जिस समय पे पब्लिश नहीं हुई थी, बिफोर दिवाली, तो आपके जो नियर डियर लोग थे उनका कैसे रिएक्शंस थे? तो शेयर बोथ पॉजिटिव रिएक्शन आल्सो, नेगेटिव रिएक्शन. तो बताइए कि कैसा रिएक्शन? एक्चुअली सबसे पहली बात तो यही है कि जो मैं बचपन में था या फिर जो मैं कॉलेज में था, एंड अगर आप उसकी इमेज लेकर आप अगर मुझे अभी देखेंगे तो लोग बहुत ज्यादा डिफरेंस पाएंगे कि मैं वो इंसान नहीं बन सकता जो अभी हूँ. सडनली जब मैंने बुक लिखना स्टार्ट किया, जब मैंने उसको अनाउंस किया कि मैं ऐसा कर रहा हूँ, तो बहुत सारे लोग तो मतलब शॉक हो गए कि ये तो पॉसिबल है नहीं, क्योंकि ये इंसान तो स्टैमरिंग वाला था जिसके अंदर कॉन्फिडेंस बिल्कुल नहीं था, एंड मतलब वो शाय टाइप का इंसान, एंड सडनली इसके अंदर इतना कैसे क्या ग्रोथ एंड जो भी सक्सेस जो भी है आ रहा है. तो कुछ लोग ऐसे थे जो कि शॉक हो रहे थे, एंड कुछ लोग ऐसे थे जो मुझे सपोर्ट कर रहे थे कि अच्छा बहुत अच्छी बात है, करो करो करो. एंड तब तक मेरा एक फॉलोअर भी अच्छे से बन गया था. सो यूट्यूब से जो लोग मुझे कनेक्ट हो पा रहे थे, उन्होंने मेरी प्री बुक जो प्री लॉन्च था, तो उसमें से बहुत सारे लोगों ने उसको बाय भी किया था. सो मेरे लिए बहुत अच्छा एक रिस्पांस था कि लोग मेरी बुक लिखने से पहले उसको बाय कर रहे हैं, मतलब कि लोगों को मेरे ऊपर कितना ट्रस्ट है कि हाँ ये कुछ हमारे अच्छे के लिए बुक लिख रहा होगा, फिर इससे हमको कुछ फायदा होगा. बहुत नेगेटिव भी थे एंड अच्छे भी थे. अच्छा, जो एस्पायरिंग ऑथर्स हैं जो लिख रहे हैं और सुन भी रहे हैं, अभी सुन रहे हैं या कभी रिकॉर्डिंग सुनेंगे, तो आप उनको क्या एडवाइस दोगे कि अगर कोई नेगेटिव सलाह आपको देता है, तू क्या करेगा, तू कैसे कर सकता है, तूने तो ये भी नहीं किया? बिकॉज पुराने लोग हैं ना, हमारा बैगेज लेके चलते हैं, तो उसी हिसाब से हमको देखते हैं. तो आप उनको क्या एडवाइस दोगे कि अगर कोई ऐसा नेगेटिव बोलता है, और समझो आपका बहुत नियर बोलता है, बहुत दूर वाला खास दोस्त बोल देता है, या आपका घर का भाई बोल देता है, बड़ा भाई, छोटा भाई, तो हाउ डू यू हैंडल दैट सिचुएशन? कैसे हैंडल करनी चाहिए? एक्चुअली जब हम इस दुनिया में आए हैं तो अकेले आए हैं, अकेले जाएंगे. सो आपके जो भाई बहन, रिश्तेदार, फ्रेंड जो भी है, वो उनका अपना लाइफ होता है अलग, एंड आपका अलग लाइफ होता है. सो अगर आप अपने लाइफ में कोई ड्रीम लेकर चलते हैं, एंड अगर आप कोई कहता है कि आप ये नहीं कर सकते, बट अगर आपको अंदर से लग रहा है कि मैं कर सकता हूँ, तो आप कर सकते हैं. बट अगर आप लोगों की सुनकर अगर आप अपना डिसीजन चेंज कर रहे हैं, मतलब कि आप लाइफ में आगे नहीं बढ़ पाएंगे, क्योंकि लोग कुछ ना कुछ तो कहेंगे हमेशा. सो लोगों का काम है कहना, और हमारा काम सुनना नहीं है, हमारा काम कुछ करना. कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना. एंड हाउ इट फील्स टू कंप्लीटिंग द बुक? जब वो कंप्लीट हो गई ना, कि अभी लगा कि अभी मेरा काम हो गया है, 20 दिन हो गए, ड्राफ्ट बन गया है, हमने कहा कि फिर से पढ़ लीजिए, ड्राफ्ट क्लीन कर लीजिए, then you send the book, and then once you know that everything is done, I'm sending an email to Kailash and Deepak, now they will take it. How was that feeling कि आपको लगा कि हाँ अभी बुक आ गई, या first time when you saw your book in your hand ऐसे, how was that feeling? एक्चुअली वो सबसे पहले एक ड्रीम था
कि मैं कुछ करना चाहता था एंड मुझे ये समझ में नहीं आ रहा था कि वो 30 दिन में होगा या नहीं होगा। जैसे आपने जितना हेल्प किया मुझे, दीपक जी ने जितना हेल्प किया सब कुछ चीजों में, सो वो ऐसा था कि इम्पॉसिबल था मेरे लिए सबसे पहले। बट वो चीज इम्पॉसिबल जब आपके सामने पॉसिबल होकर सामने आती है तो वो फीलिंग हम वर्ड्स में एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो फीलिंग बहुत ही हाई होती है कि हमने कुछ अचीव किया अपने लाइफ में। एंड ऑथर बनना ये तो बहुत बड़ी अचीवमेंट है मेरे हिसाब से, और लाइफ लॉन्ग ये साथ में रहने वाला है। राइट। और बुक लर्निंग, जब आप बुक लिख रहे थे, डिड यू हैड एनी रियलाइजेशन कि लिखते समय मुझे कुछ अच्छी नॉलेज आई, या लिखते समय रियलाइजेशन अरे वाह मतलब ये क्या आ गया? मतलब कभी कभी होता है, बहुत ऑथर के साथ होता है, कोई ऐसा लर्निंग है लिखते समय क्या सीखने को मिला? एक्चुअली मैंने बुक तो लिखी नहीं, आपने पहले बताया कि मैंने उसको बोला है। जब मैंने उसको बोला है तो मेरे दिमाग में ऐसे बहुत सारे अच्छे अच्छे थॉट्स आ रहे थे जो मैंने उस बुक में लिखा। एंड मुझे ऐसा लगता है कि जब वो थॉट्स आ रहे थे, तो जब मेरी बुक को कोई पढ़ता है तो उसको ऐसा लगता है कि मैं उसके साथ बात ही कर रहा हूँ। जब मैं बुक लिख रहा था तो मेरे दिमाग में इतने अच्छे अच्छे थॉट आए कि मैंने उसको मैं अपने क्लाइंट के साथ भी इम्प्लीमेंट कर रहा था, तो उनको भी सेम रिजल्ट मिल रहा था। क्योंकि आपके अंदर से कंटेंट तभी आता है जब आपको कोई क्वेश्चन पूछता है, आपके पास पता होता है बट वो आता नहीं है अंदर से। जब आपके सामने कोई क्वेश्चन आता है तभी आपके पास आंसर होता है वो। अब बुक लिखने का प्रोसेस अगर अभी याद करोगे अंकुश, तो कोई क्या याद आता है? कुछ स्पेसिफिक मोमेंट्स याद आते हैं? मुझे एक मोमेंट याद आते कि जब मैं चेयर पर बैठता था 3-4 घंटे के लिए एंड मेरे सामने मोबाइल होता था, मेरे कान में हेडफोन होता था, मैं बस उसमें बात करता था। मेरे सामने क्वेश्चंस होते थे, मैं उसमें बस बात करता 3 घंटे होते थे। एंड मैं तब तक खाने के लिए नहीं जाता, खाना खाने के लिए, जब तक वो चैप्टर कंप्लीट ना हो जाए, फिर वो टास्क कंप्लीट ना हो। तो वो मेरे दिमाग में अभी भी आता है। और मुझे याद है आपका जिस दिन फोटो शूट हुआ था बुक के लिए, हमने फोटो शूट किया था, बिकॉज फोटो का भी एक प्रोसेस है। तो मुझे याद है जब अंकुश ने मुझे फोटो भेजा, आई वाज वेरी हैप्पी टू सी द फोटो। हाउ वाज दैट एक्सपीरियंस ऑफ फोटो शूट? बिकॉज वी हैव अ फैंटास्टिक फोटोग्राफर टू द फोटो शूट। फोटो शूट तो ऐसा था कि जो आए थे उनका नाम नितिन है, नितिन तो बहुत ही हम्बल थे। एंड वो मुझे एक्सप्लेन कर रहे थे कि आप ऐसे खड़े रहिए, वैसे खड़े रहिए। एंड जब मैं फोटो खींच रहा था मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं इतना अच्छा नहीं दिखूंगा, बट जब उन्होंने जो अच्छे से फाइल वो बनाई है मुझे सेंड, तो मतलब वो बहुत अच्छा लगा मुझे कि मैं ऐसा दिखता हूँ, इतना अच्छा दिखता हूँ मैं, मतलब वो फोटो में। सो मतलब वो बहुत अच्छा। वैसे भी आप बहुत अच्छे दिखते हैं। बट आई थिंक नितिन डज अ गुड जॉब। हमारे जो भी मेरी टीम है, एवरीवन इन द टीम इज, जो भी वो काम कर रहा है इसलिए नहीं कर रहा है। मेरी कोई भी टीम मेंबर देख लीजिए, मेरी टीम मेंबर में आभास है, मोनिका है, मेरी टीम दीपक है, तरुण है, बहुत सारे लोग हैं मेरी टीम में। ये सब लोग इसलिए काम करते हैं क्योंकि इनके दिल का काम है। हमारे यहाँ पे मेरी पूरी टीम में, आई एम ब्लेस्ड विद अ टीम, यहाँ पे सब लोग इसलिए काम कर रहे हैं कि दिल का काम है, ना कि जॉब है। इसलिए काम अच्छा होता है, सबका काम अच्छा होता है। राइट। सीक्रेट फॉर्मूला शेयर करना चाहेंगे जो ऑथर्स अभी सुन रहे हैं या रिकॉर्डिंग सुनेंगे, कि 20 दिन में बुक लिखने का सीक्रेट क्या है, ताकि वो भी फिनिश कर पाए 20 दिन में, 20-25 दिन। सो सीक्रेट वही है जो मैं आपको एक बार और बता देता हूँ कि अगर आप किसी काम को कर रहे हैं तो अपना एक टाइम फिक्स कीजिए, जिसमें मान के लिए 2 या 3 घंटे आप देना है। मोबाइल को स्विच ऑफ कर दीजिए, साइलेंट कर दीजिए, एंड आपका पूरा फोकस उसी पे लगाइए। एंड जो आपका टारगेट है उसको अचीव कीजिए उसी समय में, एंड उसके बाद जो करना है वो कीजिए। तो 20% जो आपने कहा कि स्टार्टिंग में 80% 20% जो रूल है, तो इसमें 20% में आपका बुक भी आना चाहिए उस टाइम पे। एंड हाउ मच 30-day बुक राइटिंग फॉर्मूला जो हमने कैन में बैठ के बनाया था, स्ट्रक्चर बनाया था, उससे कितना हेल्प मिला आपको फास्टर करने में प्रोसेस? इससे हेल्प मिला मुझे। सो क्योंकि आई रिमेंबर यू सेइंग कि जब आप बात करते थे तो सामने क्वेश्चंस रहते थे, सो ये वही क्वेश्चंस है जो 30-day फॉर्मूला में हमने डिसाइड किया। राइट। वही फॉर्मूला मुझे अच्छा लगा। हाँ, और बहुत सारे ऑथर्स हैं, इवन अंकुश आपके साथ कई सारे ऑथर्स मेरे साथ जुड़े थे अभी अराउंड उस बात को भी 8-9 महीने हो चुके हैं, लेकिन अभी भी उनकी बुक कंप्लीट नहीं हुई। कई हैं आप ही के बैच में से ऑथर हैं, और लिखना भी लिखा स्टार्ट किया, फिनिश नहीं किया। तो अभी आपके बैच की बात करूं, आपके बैच के जो ऑथर्स हैं जिन्होंने स्टार्ट किया लेकिन फिनिश नहीं किया, शुरू किया 1-1.5 महीना लिखा, मेरे ख्याल से उन्होंने 12,000 13,000 14,000 वर्ड लिख के उसको गैप दे दिया। तो आप उनको कुछ एडवाइस देना चाहेंगे कि हाउ कैन दे स्टार्ट, और एनीवन हु स्टार्ट्स राइटिंग स्टॉप्स इन बिटवीन, तो एक बार आप रुक जाते हो ना तो फिर से वापस चलने में टाइम लगता है।
राइट तो राइट राइट। आपका एडवाइस दोगे उनको कि कैसे वो फिर से रीस्टार्ट करें प्रोसेस और बुक खत्म करें और एंजॉय करें बीइंग एन ऑथर? मुझे ऐसा लगता है कि अगर उन्होंने एक बात सोचनी चाहिए कि अगर आप बुक लिखेंगे तो आपके फ्यूचर में क्या क्या अच्छा अच्छा हो सकता है। अगर आप उस चीज को दिमाग में सोचकर बुक लिख रहे हैं तो आप बहुत जल्दी बुक लिख पाएंगे। एंड दूसरी बात ये है कि जैसे न्यूटन का जैसे फर्स्ट लॉ है कि जब आप किसी एक्शन में होते, मूवमेंट में होते, तो आपको मूवमेंट में तब तक रहते जब तक उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं होता है। रुक गए तो रुक गए, तो उसके लिए आपको एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करना पड़ता है। सो आई थिंक आपको बस शुरुआत करनी चाहिए टाइपिंग से या फिर बोलने से, कुछ ना कुछ आप शुरुआत कीजिए, आधा घंटा डेली का, बट उसको कंप्लीट जरूर कीजिए। टॉप 3 बेनिफिट अंकुश क्या हो सकते हैं, कि क्या टॉप 3 बेनिफिट आपको मिले बुक लिखने के कारण? बुक लिखने के बाद मेरा बेनिफिट तो सबसे पहला ये है कि मुझे वर्ल्ड वाइड लोग जानने लगे कि अंकुश पारे नाम का कोई लड़का है जो ऐसा ऐसा सिखाता है। सो सबसे पहला फायदा तो मेरी रीच वर्ल्ड वाइड हो गई, एक ऑथेंटिसिटी मिल गया मुझे ये सिखाने का स्टैमरिंग के ऊपर। दूसरा मुझे ऐसा लगता है बेनिफिट कि मैं कुछ कर सकता हूँ लाइफ में, मैं कुछ लाइफ में कंप्लीट कर सकता हूँ, तो सेंस ऑफ अचीवमेंट था वो, ये दूसरा था। एंड तीसरा मुझे लगता है बेनिफिट वो है कि अगर मैं भी लिख सकता हूँ तो मैं मतलब ये सेम कंसेप्ट अगर मैं किसी और को भी बताऊं या फिर मैं उनको भी इंस्पायर कर सकता हूँ करने के लिए, क्योंकि मैंने किया है, मैं उनके सामने एग्जांपल हूँ। जो 3 बेनिफिट है। हाँ। और आप अपनी बुक राइटिंग प्रोसेस में या इवन लाइफ में भी किन किन लोगों को थैंक यू बोलना चाहेंगे? बिकॉज आज ये रिकॉर्ड हो रहा है, जैसे रिकॉर्डिंग सेशन मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ उसको, तो हो सकता है कभी ना कभी उनको देखने को मिले या शायद अभी लाइव भी देख रहे हो, पता नहीं मुझे। सो आप किन लोगों को अपनी लाइफ में थैंक यू करना चाहते हैं? बिकॉज ऑफ देम यू आर इन द कैरेक्टर। तो 2 लोग हैं, एक तो आपकी जिंदगी में, दूसरे बुक राइटिंग में। किन किन को आप थैंक यू बोलना चाहते हैं? जस्ट गिव अ ग्रेटिट्यूड टू एवरीवन। ओके, सो सबसे पहले थैंक यू मैं अपने फादर मदर को ही बोलना चाहूंगा, पेरेंट्स को। उसके बाद मेरी सिस्टर्स को, एक बड़ी सिस्टर है, एक छोटी सिस्टर है, उनको। उसके बाद मेरे जीजू जो है उनको मैं थैंक यू कहना चाहूंगा क्योंकि वो बहुत अच्छा, मतलब बहुत सपोर्टिव है। उसके बाद मैं आपको थैंक यू कहना चाहूंगा क्योंकि आपकी वजह से बुक हो पाई, आपने। उसके बाद दीपक जी, वो तो बहुत बड़े इंस्पिरेशन है मेरे लिए कि वो मतलब इतनी एज में भी इतना अच्छे से मैनेज करते, यंग बिल्कुल उनका माइंड चलता है। तो वो यंग है, ऐसा एज में मत बोलो, यंग है। वो यंग ही है बट वो तो मुझसे भी यंग लगता है ऐसा। सो दीपक जी है, मैं उनको थैंक यू कहना चाहूंगा। नितिन जी है जिन्होंने मेरा फोटोशूट किया, वो मैं उनको थैंक यू कहना चाहूंगा। एंड उसके बाद जो उस बैच में थे जिनके वजह से मैं उस बैच को एंजॉय कर पाया या फिर उनके वजह से थोड़ा मोटिवेट हो पाया कि अच्छा ये भी करे तो थोड़ा मैं भी कर लूं, फटाफट साथ में करेंगे। तो उसमें शायद नाम मुझे याद नहीं आ रहे हैं, बट विक्रांत थे आपके साथ में। अरे अनिर्बन ऐसा कुछ नाम है किसी। हाँ, अनिर्बन थे, विक्रांत थे, प्रतीक थे, रविचंद्रन सर थे, रविचंद्रन को भी रिलीज हुआ है, सनम मैम थी, सनम मीरपुरी मैम। तो मैं सभी को थैंक यू कहना चाहूंगा। एंड मैं और अपने यूट्यूबर सब्सक्राइबर जो है, मेरे व्यूअर है, उनको भी थैंक यू कहना चाहूंगा क्योंकि वो एक्चुअली मुझे सपोर्ट कर रहे थे एंड मेरे अंदर एक कॉन्फिडेंस है कि हमें बुक भी लिख सकता हूँ। मेरे क्लाइंट्स को मैं थैंक यू कहना चाहूंगा, शायद इसमें से कोई और 1-2 क्लाइंट है मेरे यहाँ पर जो मुझे देख रहे हैं अभी भी। सो इसमें थैंक यू वेरी मच, बिकॉज यू नो मेरे को हमेशा लगता है इट्स अ गिवर्स गेन फिलोसॉफी। हम अपने क्षमता से देते हैं और अपनी क्षमता से हमें देते हैं और एक दूसरे की हेल्प करके हम सब लोग ग्रो हो रहे हैं। एंड वेरी ब्यूटीफुल थिंग है जो अंकुश फॉलो करते हैं अपनी लाइफ में, कि वो अपने दिल को फॉलो कर रहे हैं, अपने पैशंस को फॉलो कर रहे हैं। आप सब लोगों को भी यही रिक्वेस्ट है मेरा कि अपने दिल को फॉलो कीजिए, पैशन को फॉलो कीजिए, ताकि आपकी लाइफ फास्ट ट्रैक पे आ जाए। क्योंकि लाइफ मिरेकल बन जाती है जब आप अपने दिल को फॉलो करते हैं। दिमाग को मत करो, दिल को करो। एक क्वेश्चन है बिफोर दैट, है ना, मैं पब्लिक को भी बोलूंगा, आप सवाल सोच लें 5 मिनट के अंदर। आई एम टू गिव यू द सेशन टू स्पीक। पर अंकुश, एक क्वेश्चन है मेरा, आपको क्या लगता है कि लाइफ में मेंटर का क्या रोल होता है? और मेंटर अगर किसी की लाइफ में है, किसी भी प्रोसेस में, चाहे बुक राइटिंग प्रोसेस हो या कोई भी प्रोसेस हो, मेंटर का क्या रोल होता है और मेंटर के होने से क्या फायदा होता है? इस फील्ड में आने से पहले मेरा कोई मेंटर तो था नहीं, बट इस फील्ड में आने के बाद मैं आपको मेंटर मानता हूँ, बाकी और लोग उनको मेंटर मानता हूँ। सो आपका बड़प्पन है अंकुश जी, मुझे मेंटर मानते हो, अच्छी बात है। एक्चुअली आपकी वजह से बहुत कुछ कर पाया।
सो उनके वजह से क्या होता है कि आपके पीछे जब अगर कोई मेंटर होता है ना आपके साथ, तो आपको बहुत सारी गलतियों से आपकी गलतियां होने से आपको वो रोकेगा, क्योंकि उनको पता है कि ये गलती कर सकता है वहां पे। तो मेंटर का आपको एक हेल्प ऐसी मिल सकती है कि आप बहुत जल्दी ग्रोथ कर सकते हैं, अपनी लाइफ में ग्रो कर सकते हैं, आपको सक्सेस बहुत जल्दी मिल सकता है। एंड जो आप मिस्टेक करो आप नहीं करेंगे तो क्या होगा, आपका उसमें कॉन्फिडेंस और जल्दी बढ़ता है। तो ये मुझे लगता है कि मेंटर का होता है। मेरे भी मेंटर्स हैं। मैं एक ही बात बोलता हूँ, मेंटर क्या है, अंधेरे में टॉर्च का काम करते हैं। आप अंधेरे रास्ते पे चल रहे हो, आगे पत्थर है, आपको नहीं दिखेगा और ठकरा के गिरोगे, और उस टक्कर से कितनी देर रुकना पड़ेगा पता नहीं है। टॉर्च होगी ना, आपको रास्ता दिखाएगी और सही रास्ते पे ले जाएगी। दैट इज द रोल ऑफ मेंटर। अगर आप पब्लिक स्पीकिंग, इफेक्टिव स्पीकिंग या बोलना, क्योंकि बोलना बहुत इंपॉर्टेंट है, हमारे 5 सेंसेस हैं, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट प्रोफाउंड सेंस है बोलना, बिकॉज हम जो बोलते हैं उससे हम अपने अंदर के इमोशंस को सामने वाले को ट्रांसफर कर पाते हैं। अगर आप एक मेंटर ढूंढ रहे हो जो आपको अच्छे से हेल्प कर सके इफेक्टिव स्पीकिंग में, आपके किसी फ्रेंड रिलेटिव में ऐसा कोई है जो स्टैमरिंग के कारण परेशान है, आप अंकुश को कांटेक्ट कीजिए। आप मुझे कांटेक्ट कीजिए, मैं आपको अंकुश से मिलवा दूंगा। और प्लीज लुक फॉर अंकुश, ही इज अ वेरी गुड पर्सन। And I always say, one of my mentors says, we always overestimate what we can do in 1 year, and we always underestimate what we can do in 10 years. मुझे पता है 10 साल बाद में अंकुश जी और बाकी सब लोग, मेरी टीम में जो भी ऑथर्स हैं, all are going to build a big community in the world. मतलब बहुत बड़ी कम्युनिटी बना रहे हैं अपन इंडिया में, which will rule the world one day because of knowledge. So I want to open the session for participants. ये आपके कोई क्वेश्चन है तो एक अमित भटनागर जी हैं। अमित भटनागर जी बहुत प्योर सोल हैं, आप मिले नहीं हैं अंकुश जी। मेरा एक प्लान है, अच्छा जैसे आई वांट टू रिवील द प्लान। मेरे बहुत सारे ऑथर्स हो गए जो बहुत अच्छे ऑथर हैं। अमित जी बहुत अच्छे ऑथर हैं, मोहम्मद जी अच्छे ऑथर हैं, बहुत सारे अच्छे ऑथर हैं, प्रदीप जी अच्छे ऑथर हैं। दे आर वेरी गुड पीपल। सो आई एम जस्ट रिवीलिंग फर्स्ट टाइम ऑन कैमरा, आई एम वर्किंग ऑन अ फेस्टिवल। एक फेस्टिवल पे काम कर रहा हूँ जिसका जो मॉडर्न स्पिरिचुअलिटी का फेस्टिवल, इट विल नॉट बी स्पिरिचुअल फेस्टिवल बट विल बी मॉडर्न स्पिरिचुअलिटी। और ये फेस्टिवल मैं प्लान कर रहा हूँ February 2000 ऋषिकेश में। ओके, सो मैं सारे के सारे ऑथर्स को वहां आना है, एंड वी ऑल बी टुगेदर, एंड इट विल बी अ लॉन्गर इवेंट। एक 5 दिन का इवेंट रहेगा, बिकॉज मेरे मोस्ट ऑफ ऑथर्स जो हैं कोचेज हैं, ट्रेनर्स हैं, तो वो मैं वीकेंड दूंगा काम करने के लिए। तो मंडे टू फ्राइडे रहेगा। विल प्लान दिस, but I'm working on where you will all meet each other, all the authors, in February 2021 in Rishikesh. So first I'm just announcing, but I'm working on that plan right now. It will be a big festival. Very highly motivated or aligned souls would be participating in that. इनको पता है कि हम जिंदगी में दुनिया में क्या करने के लिए आए हैं। So Amitabh ji, I'm going to meet soon there for sure. Amitabh ji from Hyderabad. So Amitabh ji का क्वेश्चन है कि क्रिटिक्स को कैसे हैंडल करना चाहिए? क्रिटिक्स अबाउट बुक, हाँ अबाउट बुक। ओके, सो अमिताभ जी, मुझे भी ऐसा लगता है कि लोगों ने मुझे भी कहा कि आप बुक लिख रहे हैं, मतलब आप तो इस तरह मुझे आया था क्रिटिक, बट मैंने उनकी बात नहीं सुनी। एंड मेरे लाइफ में मैंने एक टारगेट रखा था अमिताभ जी कि अगर आप अपने गोल के लिए डेडिकेटेड है, अगर आपका व्हाई क्लियर है कि मुझे बुक को क्यों लिखना है, उसके पीछे किस किस को हेल्प हो सकती है या फिर आपके लाइफ में क्या क्या चेंजेस हो सकता है, तो मेरे हिसाब से क्रिटिक आपको इतना ज्यादा परेशान नहीं करेगा जितना आपका व्हाई आपको परेशान करेगा कि क्यों लिखनी चाहिए। So your why has to be very clear, Amitabh ji, and then your why should become bigger than your critics. It's very simple. आपका why अगर क्रिटिक से बड़ा हो जाएगा तो क्रिटिक रहेगा। अजय, one thing I also realize, Ankush, we cannot have a life where there is no criticizers. Criticizers तो हमेशा रहने वाले हैं, लेकिन हमको उनको सीखना है, उनको हैंडल करना सीखना है, उनको अवॉइड करना सीखना है। So next question I have is from Sanam ma'am, joined the call. She's saying, hi Ankush, awesome journey. What is the book for next topic? अच्छा, he's released second book on health and fitness. मेरा book? हाँ, so what is your next book now? Third book now?
ओके, सो मैं इसके बाद वाला बुक जो अपलोड किया है, पब्लिश किया, वो है इम्यूनिटी के ऊपर, हाउ टू बूस्ट योर इम्यूनिटी इजी एंड फास्ट वे। सो तो किंडल पे आ गया। एंड थर्ड के बारे में मैं सोच रहा हूँ कि क्या लिखना है अभी। अच्छा, द प्लानिंग इज गोइंग ऑन। हाँ। एंड दीपा है, दीपा रवि, शी इज ऑन द कॉल। शी इज आस्किंग, अंकुश जी, व्हाट वर द हिंड्रेंसेस you faced while writing the book and also how helped in your career? Hindrances आए, क्या क्या hindrances आते थे? So इसमें दो questions हैं, so let's take one question one. So एक तो आपके hindrances क्या थे और उनने आपको कैसे help किया career में, और दूसरा how perception change become an author. So we'll take second question later. Let's do first question first. कि क्या क्या तकलीफें आई, hindrances आए और उसने आपको कैसे help किया grow होने? बुक लिखते समय मुझे सबसे पहला एक लगा कि मेरे पास टाइम थोड़ा सा मुझे एडजस्ट करना पड़ रहा है। बट जब मैं अपने गोल को फिक्स कर लेता था कि मुझे इस दिन इतने क्वेश्चंस तो करनी है, सो वो जो प्रॉब्लम था मेरा, वो एक्चुअली इतना प्रॉब्लम नहीं लग रहा था मुझे, क्योंकि मैं वहां पर बुक नहीं लिख रहा था, मैं बुक को बोल रहा था। सो मेरा उसमें कम लग रहा था उस चीज को करने में। बाद में आप उसको थोड़ा सा एडिट भी कर सकते हैं। सो अगर प्रॉब्लम मुझे कोई आ रहा था बुक लिखते समय, तो वो वही था कि मेरे क्लाइंट्स के सेशन को हैंडल करके मैं कैसे अपनी इस बुक को भी कंप्लीट करूं। एंड मैं उसको एक स्पेसिफिक 1 घंटे का 2 घंटे का टाइम देकर मैं उसमें प्रॉपर बैठ करके मोबाइल को साइलेंट करके, कितना भी अर्जेंट कॉल है मैं उसको नहीं उठाता था, एंड मैं उसको कंप्लीट करता था। सो प्रॉब्लम्स आते हैं, बट आपका माइंड क्लियर होना चाहिए कि आपको इस बुक को डेडलाइन में कंप्लीट करना ही है, और आपके साथ डेडलाइन होनी चाहिए। अच्छा, दूसरा क्वेश्चन दीपा मैम का है कि जब आप ऑथर बन गए तो लोगों का परसेप्शन कैसे चेंज हुआ? दोनों बोलिए, ऐसे लोग जो सोचते हैं अरे क्या लिखेगा उनका भी बताइए, और अच्छों का तो दोनों बताइए। सो टेल मी बोथ द काइंड ऑफ परसेप्शन। जो लोग मुझे सोचते थे मेरे बारे में कि ये तो ऐसा ही है, इसका कुछ हो नहीं सकता लाइफ में, ये तो बस जॉब करेगा या फिर जो भी करेगा, मतलब कॉमन मैन, नॉर्मल इंसान की तरह है। सो जब उन्होंने मेरा बुक देखा तो सबसे पहले मुझे उनसे ही कॉन्ग्रेचुलेशन आया कि आपने बहुत बड़ा काम किया, क्योंकि वो लोग मुझे नहीं जान रहे थे कि मैं कौन हूं, मैं या फिर मैं क्या कर सकता हूँ। तो जो मेरे मतलब जो मेरे हेटर्स है वो मेरे फॉलोअर बन गए उसके बाद, ये कुछ कर रहा है। और उसके बाद जो लोग मुझे पहले से सपोर्ट कर रहे थे, उनके अंदर तो मेरे लिए और रिस्पेक्ट बढ़ गई कि हाँ यार, ये जो बोलता है वो करता है। ओके, सो हेटर्स फॉलोअर्स बन गए, इट्स अ बिग थिंग, बिकॉज आप ऐसा क्या करोगे कि आपका क्रिटिक्स आपको अप्रिशिएट करने लगे। बुक राइटिंग इज द इजीएस्ट प्रोसेस। उनको जाके बुक दे दो हाथ में, आप बुक काम करेंगे, बुक मन परिवर्तन कर देगी उनका। सो अभी संतोष जी हैं, संतोष खैरे जी, इज आस्किंग what is the next step apart from helping others to overcome stammering and writing book? जी, संतोष जी मेरे क्लाइंट है मेरे, एंड उनका भी स्टैमरिंग ओवरकम हो चुका है। सो संतोष जी, मैं आपको कहना चाहूंगा कि इसके बाद मेरा जो इस साल का टारगेट है, या फिर इस 1-2 साल का टारगेट है, वो ये है कि मैं स्टेज पर जाकर लोगों की हेल्प करूं। सो अभी तक जैसे मैं 1-to-1 सिखा रहा था, तो मैं कोशिश करूंगा इस साल कि मैं स्टेज पर जाकर बड़े क्राउड को हैंडल करके उनको मैं अपनी तरफ से कुछ सिखाऊं, अच्छा सिखाऊं, जिससे उनकी लाइफ में कुछ ट्रांसफॉर्मेशन आए। So I also know, अंकुश से मेरी बात होती रहती है। So there are 2 ways, all the coaches, जितने भी कोच हैं, 2 तरीके होते हैं। एक होता है डिजिटल कोचिंग, जो अंकुश जी अच्छे से कर रहे हैं, और इन्होंने शुरुआत डिजिटल से की, now he's going to the stage। और सेकंड होता है go to a stage and do the digital coaching। Very important thing is दोनों करना जरूरी है, क्योंकि दोनों का एक्सपीरियंस अलग है। राइट। क्योंकि डिजिटल कोचिंग में जब आप डिजिटल में वेबिनार्स करते हैं तो रिजल्ट इतना सामने दिखता नहीं है, रिएक्शंस नहीं दिखते हैं। लाइव कोचिंग में रिएक्शंस दिखते हैं, तो आपको सीखने को ज्यादा मिलता है, यू लर्न अ लॉट। डिजिटल में क्या होता है कैलाश जी, कि आपको बस इंफॉर्मेशन आप शेयर कर रहे हो, इसमें ट्रांसफॉर्मेशन वन साइडेड हो जाता है, एंड स्टेज पर 2 साइडेड होता है, 2 वे कम्युनिकेशन होता है मोस्टली लोगों के। एक क्वेश्चन है अविनाश जी का, अविनाश के, ही इज आस्किंग हाउ डिड यू गो अहेड विद बुक मार्केटिंग? तो उसके लिए कुछ टारगेट सेट किया था कि बुक मार्केटिंग का, डू यू सेट बुक सेल्स टारगेट्स? किनका क्वेश्चन था? अविनाश जी। ओके, अविनाश जी, मेरा तो बुक का लिखने का मोटिव यही था कि मुझे बुक को लिखना है, मेरा कोई ऐसा सेल का टारगेट नहीं था। बट जैसे मेरे यूट्यूब पर फॉलोअर्स है या फिर मेरे बहुत सारे ग्रुप्स बने हैं, तो वहां के ही जो लोग हैं उन्होंने उसको बाय किया है। एंड अभी मैं जब देखता हूँ मेरे सेल्स को, अमेज़न के सेल्स को, तो मुझे दिखता है कि मैं हर मंथ में मेरा कुछ ना कुछ सेल होता है, ऑटोमेटिकली होता है।
मुझे किसको कुछ सेल करने की जरूरत नहीं पड़ती। सो जो मेरा बुक है वो वही मार्केटिंग है। मेरे को अंकुश से मेरी बात होती रहती है। आई रिमेम्बर अंकुश वाज टेलिंग मी कि बुक लिखने से बुक सेल तो हुआ, बट उनकी जो क्रेडिबिलिटी वर्ल्ड वाइड बढ़ी ना, उससे उनके कोचिंग बिजनेस को बहुत फर्क पड़ा। इवन आई थिंक वंस आई वाज आस्किंग कि कितना हुआ है, उनके पास टाइम स्लॉट कम पड़ रहे हैं। अभी ऐसा हो गया है कि लोगों को उनकी जरूरत ज्यादा है और वो टाइम नहीं निकाल पा रहे। और फाइनली ही सेड, लेट मी सी इफ आई कैन इंक्रीज द प्राइस और डू समथिंग सो आई कैन हेल्प more better people, but he found a solution. But I personally also feel book writing से book बेच के पैसा कमाना वो ऐसा हो जाएगा कि आपने शाओलिन की तलवार ली है, जापानीज शाओलिन समुराई you have, and you decide not to fight but cut vegetables in the house. Will it cut vegetables? Yes, काटेगा ना, क्यों नहीं काटेगा, सब्जी काटेगा। But I personally feel, and I'm 100% saying that your focus should be how you can elevate yourself using the book so you grow better in your life, in your profession. Right. Praveen ji is a new author. He recently joined a community. He's asking how to be confident in your own book idea. How to be confident? जैसे आप जिस टॉपिक पे आप बुक लिख रहे हो ना, आपको कैसे कॉन्फिडेंस है कि ये सही टॉपिक पे लिख रहा हूँ? एक्चुअली जब मैंने टॉपिक को चूज किया, जैसे आप वहां पर भी कुछ करवाते टास्क वगैरह, कि आपके लाइफ में सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या था, इकिगाई आप कुछ इकिगाई ऐसा कुछ कंसेप्ट करवाते। प्रवीर जी, we have a video 3.1 in our community. You can watch that, you will find out. But he's sharing the same thing, ikigai. Yes. हाँ, तो वहां पर मैंने एक चीज नोटिस की कि मेरे लाइफ में एक प्रॉब्लम था स्टैमरिंग का, जिसको मैंने ओवरकम किया, तो क्यों ना मैं इसके ऊपर ही बुक लिख डालूं। सो जो मेरा टॉपिक है सबसे पहला, वो मेरा प्रॉब्लम ही आया कि मैंने अपने लाइफ में क्या प्रॉब्लम को फेस किया, ओवरकम किया। सो अविनाश जी का क्वेश्चन था ना? प्रवीण। ओके, सो तो आपका जो क्वेश्चन था उसका आंसर वही हो सकता है कि आपके लाइफ में जो प्रॉब्लम था और आपने जिसको ओवरकम किया, उस प्रॉब्लम को आपने जो अगर सॉल्व किया है, तो आप एक ऑथेंटिक पर्सन बन सकते हैं बुक लिखने के लिए उस टॉपिक पर, क्योंकि आपके पास उसका एक्सपीरियंस है। अब बेसिक बुक आपके अंदर से बाहर आएगी, तो आपके अंदर क्या छुपा है वो ढूंढना पड़ेगा। तो मैंने अपने प्रवीण जी, आपको अकेडमी का एक्सेस है, आप वीडियो 3.1 देखेंगे तो एंटायर एक्सरसाइज इज गिवन देयर, आप यू विल बी एबल टू फाइंड इट। नाउ दीपा इज सेइंग ऑसम अंकुश, गुड लक विद योर नेक्स्ट बुक। अरुणा मैम इज आस्किंग हाउ डू यू मैनेज टू सेल योर बुक्स? मैं बुक को सेल करता नहीं हूँ, मेरी बुक की सेल अपने आप हो जाती है। एंड जब आप अपने दिल से लिखते हो बुक, तो अगर लोगों को पसंद आ रही है तो लोग उसको देखकर रिव्यू डालते हैं या फिर लोग उसको बाय करते हैं। सो मेरा फोकस सेल पर तो नहीं अभी मोस्टली। तो मैंने बुक लिख डाली क्योंकि मुझे ऑथर बनना था, अब मैं तो बन गया हूँ। सो अगर मैं सेल के बारे में सोचूंगा तो मुझे कोई एजेंसी लेनी पड़ेगी जो मुझे हेल्प करेगी इसमें, मार्केटिंग में। संतोष जी बोल रहे हैं दैट्स रियली ग्रेट। नाउ वी हैव वन मोर क्वेश्चन फ्रॉम, लेट मी ट्राई, लक्ष्मी नारायण जी। सो ये बोल रहे हैं हाय अंकुश जी, नमस्ते। मैं लक्ष्मी नारायण फ्रॉम आंध्र प्रदेश। मैं आपसे बहुत प्रेरित हूँ। मैं आपके टिप्स से ही 85% स्टैमरिंग को ओवरकम कर चुका हूँ। इस किताब लिखने में आपकी प्रेरणा कौन है? ओके, इस किताब लिखने में आपकी प्रेरणा कौन है? सो लक्ष्मी नारायण जी, सबसे पहले तो थैंक यू सो मच कि आप मुझे फॉलो कर रहे हैं। आपकी स्टैमरिंग ओवरकम हो जाए, इसलिए 85% आपने स्टैमरिंग को ओवरकम किया, बहुत बड़ी बात है। सो इसके पीछे मेरी प्रेरणा, तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरे पेरेंट्स तो नहीं, क्योंकि मेरे पेरेंट्स फार्मर है एंड फार्मर बैकग्राउंड में इतना बड़ा कोई सोचता नहीं कि बुक लिखनी है। उनको लगता है कि बस एजुकेशन हो जाए, जॉब मिल जाए, वो तो सबसे बड़ी बात है। तो मुझे ऐसा लगता है लक्ष्मी नारायण जी, जब मैं यूट्यूब पर वीडियोस अपलोड करने लगा तो मुझे ऐसा लगा कि मैं बुक भी लिख सकता हूँ। सो मैंने जो बुक लिखी है वो आप जैसे लोगों के लिए लिखे जो मुझे फॉलो कर रहे हैं, कि मैं हर जगह पर नहीं जा सकता, इसलिए मेरी बुक अगर जा सकती है तो बहुत अच्छी बात है। सो मेरी प्रेरणा आप ही है। सो ये बहुत सही बोला, बिकॉज यूट्यूब पे जब लोगों ने इनको पसंद करना शुरू किया कि इनके कंटेंट में पावर है, तो इनको लगा कि बुक से स्प्रेडिंग बढ़ेगी कंटेंट की, उन्होंने बुक लिखा। सो बेसिकली आप ही के लिए लिखी है उन्होंने, आप ही प्रेरणा है। सो निखिल जी आस्किंग, अकॉर्डिंग टू यू द बेस्ट टिप फॉर फर्स्ट टाइम राइटर्स? सो निखिल जी, सिंपल एक टिप मैं आपको देना चाहूंगा कि आप सबसे पहले अपने आप को एक्सपर्ट मानिए एंड बुक लिख डालिए।
एंड लोग आपको बाद में एक्सपर्ट मानेंगे, क्योंकि सबसे पहले आपको खुद को मानना पड़ेगा कि आप बुक लिख सकते हैं। सो टिप तो मेरी यही रहेगी आपको कि बुक लिखने से पहले आप ये एज्यूम कीजिए कि आप एक ऑथर है, क्योंकि जब ऐसा सोचते हैं वैसा आपके अंदर से बाहर भी आता है, वैसे कंटेंट ही बाहर आते हैं। अगर आप ऐसा सोचेंगे कि मैं बुक लिख सकता हूँ, तो वो वाला कंटेंट बाहर ही नहीं आएगा ना। पहले सोचिए आप वो एक्चुअली वो इंसान है जो आप बनना चाहते हैं लाइफ में, तो अपने आपके अंदर से वो कंटेंट आएंगे। Thank you, Nikhil ji. Sanam madam is asking, I know asking or saying, she's saying simple and effective speaking tips. So अभी मैं इसे क्वेश्चन मान लेता हूँ and give one good simple and effective speaking tip. सनम जी, मैं आपको सिंपल एक टिप देना चाहूंगा कि अगर आप स्माइल अच्छी कर रहे हैं तो उसी को ही कंटिन्यू कीजिए। लोग आपके स्माइल को देखकर आपके साथ कम्युनिकेट कर पाएंगे, क्योंकि आपकी स्माइल ही मोस्टली लोग आपसे कनेक्ट कर पाते हैं। तो ये सनम मैम के लिए टिप है कि ये सबके लिए टिप है? सबके लिए, उनके लिए भी है। स्माइल करेंगे तो लोग आपको कनेक्ट करेंगे जल्दी। So smile is the shortest distance between two people. Smile करेंगे तो everything will be good. So everything should start from smile. Nikhil ji saying thank you. And Lakshmi Anand ji saying धन्यवाद. अच्छा, okay. Sanam ma'am is saying she was praising about you कि आपके बुक में बहुत simple and effective speaking tips हैं. She's praising. It was not a question. So ma'am, I thought it's a question, so I asked. Any other question? Any other question do you have? या अगर आपको भी क्वेश्चन है प्लीज पूछिए। सर मैं एक क्वेश्चन पूछता हूँ अंकुश। आई पर्सनली फील द इंडियन इकोनॉमी इज गोइंग टुवर्ड्स अ बिग शिफ्ट और वी नीड लॉट ऑफ पीपल हु आर रेडी टू शेयर देयर नॉलेज। ऐसा मुझे लगता है पर्सनली। और अगर कोई भी जॉब में है या कुछ और काम कर रहा है तो उसको अगर एक कोच इंडस्ट्री में आते हैं दैट दे वांट टू हेल्प पीपल, टीचिंग इज बेसिकली हेल्पिंग। यू आर नॉट ओनली हेल्पिंग ट्रेनिंग, नॉट कंटेंट, पर आप उनको सिखा रहे हो, हाथ पकड़ के सिखाते हो करना कैसे है। तो अगर कोई समझिए एक एग्जांपल लेते, कोई जॉब में है, वो नौकरी कर रहे हैं और उसको इस तरफ आना है, तो उसके एक्शन आइटम्स फॉर नेक्स्ट 6 months to 1 year क्या क्या होने चाहिए तो वो मूव कर सके यहाँ पे। राइट। सो सबसे पहला मुझे लगता है कि उसका एक फर्स्ट एक्शन होना चाहिए कि उसको सोचना चाहिए कि जॉब ही मेरे लिए लाइफ टाइम तक नहीं चलने वाला है, मुझे कुछ ना कुछ अदर भी इनकम सोर्स सोचना पड़ेगा, साइड हसल आपको करना पड़ेगा। एंड जब आप उसको करते हैं तो आप सबसे पहले अपने आप को पूछिए कि आप किस चीज में अच्छे हैं, ना कि ये कि यहाँ इंडस्ट्री में सबसे अच्छा क्या चल रहा है। करेक्ट। क्योंकि कुछ लोग क्या करते हैं कि कोई अच्छा कर रहा है उसकी वही करेंगे। कॉपी कैट नहीं बनना आपको। सिंपल आपका अपना जो फॉर्मूला अंदर से आ रहा है, आपको लग रहा है कि जैसे मैंने स्टैमरिंग का एक टॉपिक लिया है, लोग मुझे फॉलो कर रहे हैं, वैसे आपके अंदर क्या था जो आपने सॉल्व किया एंड लोग उसका एक सॉल्यूशन देख रहे भी इंडस्ट्री में है। सो मेरे हिसाब से अब ये जो कोविड-19 का क्राइसिस है उसके बाद जैसे अगर जॉब जाएंगे, आई डोंट नो, बट लोग वहां पर ऐसे बहुत सारे होंगे जिनको कोचेस की जरूरत पड़ने वाली है इसके बाद बहुत होंगे। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट टाइम है आपके लिए कि आप कुछ ऐसा सोचिए अपने बारे में कि आप भी इस इंडस्ट्री में आ सकते हैं। ओके, तो थैंक यू सर। बहुत प्रोफाउंड चीज बोली अंकुश ने। मैं भी ये मानता हूँ कि अगर आप ये देखेंगे कि वो कोच ये काम करके अच्छा कर रहा है तो आप कर पाएंगे, जरूरी नहीं है। आपको ये सोचना है कि आप किस में एक्सपर्ट हो, आप क्या अच्छा कर सकते हो। मैं हमेशा बोलता हूँ जब जिन कोचेस का मैं काम कर रहा हूँ, जिनको मैं सिखा रहा हूँ कैसे करना है, कंटेंट इज नॉट इम्पोर्टेंट, इंटेंट इज इम्पोर्टेंट। इंटेंट इज पावरफुल, इंटेंट इज सोल, कंटेंट इज बॉडी। तो आप जब किसी का कंटेंट कॉपी भी करोगे ना, तो इट इज जस्ट कॉपिंग द कंटेंट पार्ट ऑफ इट। इंटेंट चाहिए। सक्सेस कम्स फ्रॉम इंटेंट, नॉट फ्रॉम कंटेंट। राइट। इंटेंशन आपका सेम थिंग। ये सोचो, वही बोल रहे हैं कि आप ये सोचिए मेरे अंदर क्या है, मैं किस चीज के बनाऊं, क्या मेरा इंटेंट है लाइफ में कि मैं हेल्प कर सकूं किसी और की। दैट इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। Santosh ji saying, Subhash ji saying, great Ankush. Thank you so much, Subhash. And Santosh ji saying, thank you a lot for your support and motivation. So now if I see there are no questions, if someone has a question, you can send it. Either I'll wrap it up. Pradeep ji saying he thought and he did it. Takeaway for me is believing in yourself. तो बिलीव इन योरसेल्फ, भाई आपने सोचा है तो करना है। You thought and you did it. So that is what he's thinking. Deepa is saying thank you. So let me wrap it up. I think there are no questions. So thank you very much, every one of you.
to take the precious time of your life, come and listen to me and Ankush. If you are already planning to write a book, please go ahead and write. And if you need my help, definitely come ahead and I will help you in book writing process or publishing process. And thank you for joining. Thank you for keep us motivated, because इंटरव्यू तो मैं और अंकुश भी एक दूसरे का करके रिकॉर्डिंग कर सकते थे, बट व्हेन आई सी योर द कमेंट्स नो, इट गिव्स अस पावर. थैंक यू फॉर जॉइनिंग. एंड आई वुड लाइक टू थैंक अंकुश आल्सो, बिकॉज Ankush has so many clients across world, and getting time from Ankush is a difficult task. And I've been chasing him for the last 1.5 months for the interview. Thank you, Ankush, for giving me and all the authors time so they could learn from you, from your life journey, and these people will get also inspired. Now, but there is one more last question. As I said, thank you, but because there is a question, no question should not be unanswered. That's how we work. So, Lakshmi Narayan ji asking a question: what are the good qualities of a writer? लक्ष्मी नारायण जी, राइटर का एक क्वालिटी ये होता है कि राइटर दिल से लिखता है, ना कि दिमाग से. दूसरे होता है कि राइटर जब लिखता है तो वो ये नहीं सोचता कि मुझे कितना लिखना है, वो लिखते जाता है. सो अगर आपको भी बुक लिखना है तो आप बस लिखते जाइए, अपने आप आपके कंटेंट आते जाएंगे, और आप दिल से लिखिए तो लोग उसको पसंद भी करेंगे. So राइटर सबसे बड़ी क्वालिटी है, दिल से लिखिए. If you are following your heart, things will happen. Thank you. Abdul Rahim is saying, great sir. So thank you, Abdul. So thank you everyone. Thank you Ankush for joining me here. And this session is recorded. By tomorrow I'll share this on Facebook profile with Ankush. So someone who could not attend today because of something, they can come ahead and look at the recordings. So thank you very much everyone for joining, and bye bye. God bless you all. Grow well. Keep yourself safe.